نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ابھی ہم سب بیانات سماعت فرما رہے تھے. حضرت نے بہت اچھی اچھی باتیں بیان کی ہیں جو دلوں پر اتر جاتی ہے وہی اثر رکھتی ہے، باقی سب تمام باتیں فضول ہوتی ہے. تو موصوف نے جو ابھی باتیں بیان کی ہے اس باتوں کو اگر ہم اپنے زندگی کے اندر اتارے تو بہت ہی معتبر ہے. ابھی ہم نے ایک قرآن کریم کی آیات پڑھا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں قرآن کریم کی تلاوت کیا ہوں. ابھی موقع ملا ہے کچھ باتیں کہنے کا، کیونکہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. انسان دنیا میں آیا ہے تو کوئی اپنے ایک مقصد لے کر آیا ہے. انسان اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک مقصد ہوتی ہے، جو میرے بچے بڑے ہو کر میری پرورش کریں گے، میری دیکھ بھال کریں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں ہر طرح کے انسان کو پیدا کیا، ہر رنگ کے انسانوں کو پیدا کیا، ہر ذاتی والوں کو پیدا کیا. وہ ہر انسان کو، چرند کو، پرند کو، کیڑے مکوڑے کو، پتھر میں کیڑے چھپے ہوئے ان کو رزق تک پہنچانے کی کوشش کی. اور ہم ایک انسان ہے، ہماری روزی تو ہر روز پہنچتی ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے کفر. کفر کہنا بہت آسان ہے. سورۃ الکافرون میں کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ میں اس کی عبادت کروں جن کی عبادت تم کرتے ہو. یہاں کہا جو کافر، کفر ایک ادنا سا لفظ ہم سے کہہ دیتے ہیں کفر بہت آسان ہے، لیکن کفر کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. اللہ کو اب نہیں مانتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اب خدا کو نہیں مان رہے ہیں. ایک اور لفظ آتی ہے شرک. شرک لفظ آتی ہے جو ہم سب دن کہتے ہوئے سنتے ہوئے آتے ہیں. شرک، شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. سب کہتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں. کہتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بیانات بھی ہوتی ہے، اور ہم اس شرک لفظ کو صرف زبانوں سے اقرار کرتے ہیں، دل سے مانتے نہیں یہ شرک ہوتی ہے. کبھی نہیں مانتے، صرف کہتے ہیں جی یہ کام شرک ہے. کبیرہ گناہوں کو مانتے ہیں. گناہ دو قسموں کی ہے، ایک کبیرہ ہے، ایک صغیرہ ہے. لیکن کبیرہ گناہ کو ہم نہیں مانتے. کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ جادو تعویذ کرانا بھی شرک ہے. یہ نہیں مانتے یہ جادو تعویذ کرانا، قسمت بتانے والوں کے پاس ہاتھوں کو ریکھا دکھانا، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت ہو گئی ہے. آج ہم کسی انسان غیر محرم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا بتائیے ہماری قسمت میں کیا ہونے والا ہے. میں ڈاکٹر بن پاؤں گی یا نہیں، میں ڈاکٹر بن پاؤں گا یا نہیں، میں انجینئر بن پاؤں گا یا نہیں، میں بڑے بزنس مین بن پاؤں گا یا نہیں. یہ خواہشات لے کر غیر محرم کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں. یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، کفر کرنا ہی ہے نا. اللہ نے کہا جو اپنے غیر محرم کے سامنے آپ ایک آنکھ پر بھی پردہ کر کے رہے، غیر محرم کے سامنے آنکھوں پر بھی پردہ کر کے رہے. اور ہم غیر محرم کے سامنے ہاتھوں کو دکھاتے بھی ہیں، ہاتھوں پہ ان کا ہاتھ رکھ کر، ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کر وہ ان سے اپنی قسمت کا جانکاری لیتے ہیں. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں ہوگا وہ انسان اس طرح کے دعاؤں اور تعویذوں اور قسمت کے حال بتانے والوں کے پاس پہنچے گا. جن کو ایک خدا پر یقین ہوگی، وحدہ لا شریک پر یقین ہوگی، وہ انسان کسی بھی حد تک
भूखा रह जाएगा, तड़पता रह जाएगा, लेकिन किसी के सामने झुकने वाला नहीं होगा। सहाबा कराम का यही हाल था। जब जंग के मैदान में जाया करते थे तो भूख से कदम लड़खड़ाने लगती थी, फिर भी वहदहू वहदहू की आवाजें गूंजती रहती थी। पूरे जंग बदर का हो या जंग वहद हो या जंग खंदक हो, जितनी भी जंग की, हर जंग में सहाबा कराम भूख के प्यास से, प्यास की शिद्दत से तड़प रहे, फिर भी जंग के मैदान को छोड़कर नहीं भाग रहे। आज हमारे ऊपर जरा सी मुसीबतें आ जाती है तो हम खुदाओं को कोसना शुरू कर देते हैं, खुदा हर मुसीबत हर बला मेरे ही ऊपर क्यों देते हैं? हम क्या खुदा का बिगाड़ा है? बिगाड़े हम हर वक्त, रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक हम बिगाड़ते हैं। हर वक्त अपने बच्चों को से लेकर अपने खुद की जिंदगी को बिगाड़ चुके हैं। न मुझे वक्त पे खाने का नसीब होती है, न वक्त पे सोने का। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की बात तो दूर की है, तो हम तो हर रोज गुनाहों के जंजीरों में लटके हुए हैं। दूसरी लफ्ज आती है मुनाफिक। मुनाफिक होती है एक इंसान जो सामने से दावा करता है जो मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं अल्लाह के नबी को मानता हूं, मैं हर तरीके से आपके दुश्मन के खिलाफ दुश्मनी करता हूं। जैसे ही हमसे दूर होता है वैसे वो उसकी नजरियात बदल जाती है। यानी कि मेरे सामने मेरी तरह बातें करना और मेरे दुश्मनों के सामने मेरी दुश्मनों को मेरी बातों को बयान करना, उसे वो कहते हैं मुनाफिक। यानी जबान झूठा होना। उनकी 3 अलामतें हैं। जबानों का झूठा होना, अमल यानी जो काम करे उसकी झूठा होना, सच्चाई उसके अंदर नहीं होगी, नियत की सच्चाई, नियत जो है इरादा जो होती है वो उसके अंदर सही नहीं होती है। तो अभी और बात आई, एक और वाकयात है जो तालीम के सिलसिले से मौलाना ने भी बयान किए और बताया जो बच्चों को तालीम के बारे में। हजरत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का बयान है। बयान क्या उनका तरीका है, तजर्बा उनकी अम्मी का है, जो एक मर्तबा जब वो छोटे से थे, 5 साल या 7 साल की उम्र के थे, तो मकतब में जाया करते थे पढ़ाई करने। उनकी अम्मी का रोज का ये तरीका था जो अपने बच्चों को नमाज पढ़ाऊं तो मैं कैसे पढ़ाऊं, कैसे दिन के तरफ उनको अपने दीनी तरीका उनके अंदर दाखिल करूं। एक दिन ऐसा ही सोची वो कि क्यों नहीं मैं नमाज के लिए बच्चों को कहूं, बच्चों का नमाज पढ़ो बाबा, बच्चों का नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें मीठी मीठी चीजें देगी, मीठी चीजें देंगी। हजरत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त नादान से थे, उतना जानते भी नहीं थे, नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं मालूम थी। अम्मी बताई, अम्मी के बताए हुए तरीकों को नमाज पढ़ा करती थी। जब वो रुकू मसल्ला बिछाने जाया करती थी माँ, तो उनकी माँ जो है चीनी को मसल्ले के नीचे रख दिया करती थी और कहती थी जब तुम नमाज पढ़ लोगे ना तो अल्लाह तुम्हें, नमाज पढ़ते ही रहोगे तो तुम्हारे जय नमाज के नीचे जो है अल्लाह मीठी चीज रख देंगे, मीठी चीज। जब वो रख दिया करते थे और जब वो नमाज पढ़ते थे सबसे पहले जय नमाज को उठाते और चीनी को पाकर बहुत खुश होते और खुदा से हम्द गोई करते, या खुदा तूने मेरी नमाज कबूल कर लिया, तू मुझे मीठा नवाजा है। इसी तरह एक दिन उसकी माँ बिना बताए कहीं चली गई दोस्तों के यहाँ, वहां गई तो अब आपस में बात करते हुए लेट हो गई, उनको वक्त ज्यादा गुजर गई, जोहर का वक्त हो गई। उनकी अम्मी को एक बार याद आई, अचानक से उसकी अम्मी को याद आई जो मेरे बच्चे मकतब से घर पहुंचे होंगे, नमाज पढ़ेगा कि नहीं, उन्हें आज कौन चीनी देगा, उन्हें आज मीठा कौन रखेगा। जब वो इसी फिक्र में थी वो दुआ की, हाथ उठाई अल्लाह के सामने, या अल्लाह तू आज अपनी इज्जत और अफजा और जाहो जलाल को बरकरार रख। जिस बच्चे के जहन में मैंने ये बातें डाल दी है जो खुदा तुम्हें मीठी मीठी चीजें देगी, अच्छी अच्छी चीजें देंगी, आज उस बच्चे का यकीन को मत तोड़ना खुदा। जब वो बच्चे नमाज पढ़े, जा नमाज उठाई, जा नमाज उठाने के बाद वही मीठी चीज नजर आई। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ वहां से आई और जब पूछा बेटा तूने मीठा खाया, नमाज पढ़ा, वो बच्चे कहे हाँ मैंने मीठा भी खाया, आज बहुत ही अच्छी चीज थी, बहुत ही मीठी चीज थी।
मेरे कहने का मकसद ये था, जो हजरत बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया इसलिए सुनाना था, जो बच्चों को खुद ब खुद बच्चे नहीं करेंगे, उसको तरीका अपनाना पड़ेगा, उनके लिए हमको खुद बनना पड़ेगा वैसा। मुझे भी सवेरे जगना होगा, वक्त की पाबंद मुझे होना होगा, तब मेरे बच्चे वक्त पे स्कूल जाएंगे, वक्त पे हर चीज करेंगे। अगर मेरी ही नीयत खराब हो, मेरी ही नीयत सवेरे ना जगने का हो, मुझे फजर के वक्त जगने की आदत ना हो, तो मेरे बच्चे जाहिर सी बात है वो फजर क्या ऐशा के वक्त भी नहीं जगेगा, वो फजर ही क्या ऐशा के वक्त भी नहीं जगेगा। इसीलिए हजरत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो थी वह नेक थी, बाअदब थी, वह हर वक्त रोजा नमाज तिलावत किया करती थी, इसलिए अपने बच्चों के अंदर वो तरबियत डाल दी, जो मेरे बच्चे कम से कम इतनी चीज तो सीख ले, दीन की तालीम तो हासिल कर ले, दुनियावी तालीम तो उम्र रही जिंदगी रही तो सीख ही लेगा। तुम्हें अभी जो कह रहे थे, कहने का मकसद यही था, जो मौलाना के बयान जो हुई थी वो भी बहुत बेहतरीन थी। उसी तरीके से जब वो कह रहे थे जो वक्त की पाबंदी, वक्त हजार नेमतों में से एक नेमत है, वक्त की कदर जानना है अगर आपको तो हॉस्पिटल में जाकर देखे, जो एक एक सेकंड और मिनट के लिए तड़प रहा है उनको जाकर देखे वक्त क्या कदर होती है। अगर तंदुरुस्ती की कदर जाननी है तो बीमार के पास जाया, बीमार के पास जाकर बैठकर उनकी बीमारी और उनके दर्द और कराहियत को समझे तो पता चलेगी जिंदगी में सेहत कितनी बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है, वक्त कितनी बड़ी नेमत है। रात मिल रही मुझे सोने को, मैं रातों को मोबाइल में गुजार दे रहा हूं। हम अपने बच्चों को सोच रहे हैं, बच्चे को कहते हैं बच्चा सो गया है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे कम बिस्तर के अंदर जाकर मोबाइलों को देखेगा, जाहिर बात है वो सुबह सवेरे नहीं जग पाएगा, अगर वो जगेगा भी तो उन्हें नींद आएगी, सर में दर्द होगी, बदन चकराएगा, पूरे जिस्म उसका तोड़ता रहेगा, मरोड़ता रहेगा, वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर स्कूल पहुंच भी गया तो हजार बहाने उनकी होगी, जो मैं रात देर से सोया, मैं रात कहाँ गया था, हजारों बहाने आती है, रोज सुनते आता हूँ। यहाँ तक के बच्चों के अंदर देखता हूँ जो जैसे ही 7-8 के अंदर दाखिल होता है, बच्चों के अंदर अजीब हरकतें पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जिसके सामने कोई उस्ताद नहीं, कोई टीचर उनके सामने कुछ नहीं है, वो ये सोचता है जो मेरी माँ, सबसे पहला लफ्ज मेरी माँ हर चीज को देख लेगी, उस्ताद क्या है, टीचर क्या है, वो मुझे मारेंगे या मुझे डांटेंगे तो मेरी माँ जो है वो हर एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है। ये उसके अंदर माँ ही डालती है अपने उस्ताद की रुतबा को घटाने वाली बातों को। अगर माँ उसके अंदर अपने उस्ताद की अहमियत कदर को जान जाए और उसके अंदर डाले तो वह बच्चे कभी अपने उस्ताद से या कहीं भी पढ़े, ये नहीं मैटर रखता जी यही पढ़ रहा हो या मेरे से ही पढ़ रहा हो या किसी और से पढ़ रहा, कहाँ जहां भी पढ़ रहा, अगर उसकी कदर करना सिखाना माँ के अंदर होती है, माँ ही सबसे मदरसा, पहला मदरसा होता है। अगर वो तरबियत अच्छी देगी तो उनके बच्चे भी तरबियत अच्छी सीखेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो वो कोई बच्चा नहीं सिखा सकता। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है, मैं शुरू से पढ़ाता हूं, मैं एक बात बता दो, शुरू से पढ़ा रहा हूं। उनके घर के अंदर तरबियत दुनियावी वाली है, दुनियावी माहौल है, दुनिया के तौर तरीके। एक दिन मैंने कहा, सोने का अंगूठी पहने हुआ था, उसने कहा जो सोने का अंगूठी पहनना मुसलमानों में हराम है मर्दों के लिए। वो मुझसे कह रहा हराम है, साबित करके दिखाइए। मैंने कहा साबित कैसे करे? वो कहा जो साइंस जिस तरह साबित करता है ना साइंस में, उस तरह आप साबित करके दिखाइए, प्रैक्टिकल करके दिखाइए तो मैं समझ जाऊंगा जो कुरान सच कह रहा है। हमने कहा कुरान इसका मतलब झूठा है, तो हाँ इस तरह झूठा ही है। कुछ दिन तक इससे हुज्जत होता रहा, आपस में उसकी बात होती रही। मैं उसको दीनियात की किताब पढ़ाते उसको एक सीधी तरबियत, उसकी माँ बेचैन थी ये क्या हो गया इसको। साइंस ज्यादा पढ़ने के बाद उस बच्चे का दिमाग दो तरफा हो गया था, वो सब चीज को समझ रहा था साइंस है। सूरह फातिहा याद करना नहीं आ रहा उसको। एक दिन हमने कहा सूरह फातिहा अगर याद करके सुना दिए तो मैं साइंस की गुलामी करूंगा। साइंस को मैं भी मानता हूँ, ऐसा थोड़ी ना मानता हूँ अपनी जिंदगी, अपने दीन और बका को छोड़कर उसको मैं गिनती दूं। साइंस को मानता हूं, लेकिन शर्त यह है जो कुरान को तुम मुझे याद करके सुना दो। एक सूरह उसको याद करने में 4 महीने लग गए हजरत, एक सूरह को याद करने में
4 महीने लग गए और 4 महीने वो घंटों भर बैठ के मेरे सामने याद किया, याद नहीं हुआ, आज तक उनको याद नहीं हुआ है। तो उनको हम समझाए तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के तौबा को कबूल फरमाते हैं। तुम तो एक नादान से बच्चे हो, कबूल हो ही जाएगी। अल्लाह हम जैसे इंसानों को दुआ को कबूल करते हैं और हम जैसे इंसानों की तौबा को कबूल करते हैं। तुम तो अभी नादान हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, 10वीं पास की हो, ज़्यादा उम्र नहीं है। तो उस दिन से वो तौबा किया, अब वो थोड़ी सी घर में सही रहता है। तो दुनियावी माहौल देने से नुकसान भी होती है, इसलिए मैं अपने माँ और बहनों से कहूँगा जो दुनियावी माहौल भी दे और दीनी भी दे, ताकि मेरे बच्चे दीन के लाइन से भी कामयाब रहे और दुनिया में भी कामयाब रहे। दिल खैराबादी का एक शेर है ना, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। कहते हैं ना, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। यानी इस बात से मिसाल ये थी, जो एक नन्हा सा लड़का है, अभी नादान सा है, उनको जिस तरफ हम मोड़ देंगे उस तरफ वो मुड़ जाएगा। उन्हें अगर हम अकर सिखाएंगे तो वो अकर में सामने आएगा, और अगर उन्हें सही तरीका सिखाएंगे तो सही से आएंगे। इसका वजूहात और भी होते हैं। जिस गार्जियन को पता चलता है जब मैं बहुत प्यार अपने बच्चों के पे निछावर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, गार्जियन सोचते हैं बहुत मेरा प्यारा है, बहुत दिल के करीब है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, या वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं स्कूल नहीं भेज सकता, मैं मदरसे नहीं भेज सकता। तो ऐसे गार्जियन अपने जहन को थोड़ा साफ सुथरा कर ले, क्योंकि वो आपका ही बच्चा है और आपका ही रहेगा, किसी और का हो नहीं सकता है। वो हमेशा रहेगा और हमेशा है। हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। उनके 2 लड़के थे, एक का नाम मामून, एक का नाम अमीन। मामून जो था बहुत शरारती था, न दौलत की कमी थी, न जाहो जलाल की कमी थी। बादशाह थे उनके वालिद, नौकर चाकर थे घर में, हर तरफ से खादिम खुद्दाम मौजूद थे। अमीन से अगर कोई उस्ताद आते, मास्टर पढ़ाने आते, तो उन्हें मारकर भगा देता। चाहे जितना भी उम्र दराज आए, कम उम्र आए, ताकतवर आए, सबको मारकर वो भगा दिया करता था। एक दिन उसी के वजीर ने कहा, हुजूर मैं एक छोटी जबान बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो अगर आप मेरी बात सुने तो पास में एक मस्जिद है, उसके इमाम साहब को अगर दावत दे, या उस मस्जिद के इमाम साहब से अगर आप कहें तो दीन की दावत देते ही रहते हर वक्त, हो सके कहीं मामून सुधर जाए। उनके अब्बू कहे ठीक है, बुला लो उनको। जब वो एक दिन आए पढ़ाने, बच्चे की शरारत को देखे, फिर दूसरे दिन आए शरारत को देखे, तीसरे दिन आए आवाज देते रहे, उस्ताद नहीं सुना। आने के बाद कमरे के गेट बंद किए और उनको इतनी मार मारे, वहां से वजीर का गुजर हुआ, वो खामोश हो गया। मामून खामोश होने के बाद उस वजीर का गुजर जाना, वहां से चले जाने के बाद उस्ताद पूछे, तुम क्यों नहीं शिकायत किया, तुमको इतना मारे हैं, क्यों नहीं शिकायत किया? वो बच्चा कहा, हुजूर हजरत आप मुझे जो मारे हैं मेरी तरबियत के लिए मारे हैं, मेरी सलाहियत के लिए मारे हैं। वजीर अगर बादशाह भी आ जाता तो मैं ये बात नहीं बताता। वजीर तो क्या चीज है, बादशाह भी आ जाता ना तो मैं नहीं बताता। उतने बिगड़े हुए लड़का जो नौकर को मार देता था, खादिम जो खिदमत करता, जो खाना पहुंचाता, जो नाश्ता पहुंचाता, जो कपड़े उनका धोता, जो उनको घुमाने फिराने ले जाता, उनको वो मार देता था। और एक उस्ताद की मार को उस वक्त उनके ज़हन पे उतर गई और वो उस दिन से पढ़ना शुरू किया, और इतना बढ़ा कि एक दिन बाप की तरह ही वो बादशाह बन गया। तो उस्तादों की अहमियत है, उस्ताद की मारों के अंदर। उस्ताद जो मारते हैं उनके अपनी तरबियत के लिए उनको कोई फायदा नहीं है। उस्ताद ही चाहता है जो मेरा बच्चा मुझसे पढ़ने वाला कामयाब हो, और जब वो कामयाब होकर आता है तो उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं होती जो मुझे ये चीज दे, इनामात दे। बस उन्हें ये ख्वाहिश होती है, खुशी से वो झूम उठते हैं और उनकी दुआ और देते, दुआओं से नवाजते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है, जितनी भी बातें कही गई है ये सब कोई फजूल बातें नहीं है। अपने हकीकत जिंदगी में अगर उतारना चाह रहे हैं तो मैं खुद को बदलूं, अपने आप को बदल कर देखें। वाकईतन मेरे अंदर ही ये चीज है जो हम अपने बच्चों के अंदर दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो आप
कुछ मत दीजिए, दुनिया की सारी दौलत नहीं दीजिए, बस एक आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम भरपूर दीजिए। चाहे उसके लिए आपको एक वक्त खाना ही बंद करना हो, खाना बंद कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के पीछे हर वक्त हर फन तैयार रहे, क्योंकि जब ये कामयाब हो जाएगा तो आप आने वाली जिंदगी आपकी जो होगी उस जिंदगी में आप कमजोर हो जाएंगे जिस्मानी एतबार से, तो आपका सहारा और आपका हमदर्द और आपकी मदद करने वाला एक वही लड़का होगा जब वो हर तालीम को पाया रहेगा। अगर वो तंग दस्ती में जिंदगी गुजारेगा तो फिर आपको दूर होना होगा उससे, और आपको सड़क के किनारे बसने पर मजबूर होना पड़ेगा। आप देखते आते हैं जिस खानदान में, जिस कबीले में पढ़ा हुआ नहीं है, तो ना वो पढ़ा तो उसका तंग दस्ती का आलम है। जब वो तंगी में है तो अपने माँ बाप का परवरिश कहां से करेगा? किसी भी सूरत में नहीं करेगा। हजार उनके सामने दलाइल रख दिया जाए, हजारों उसके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में सुना दी जाए, वो सुन सकता है लेकिन कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ हालात बहुत बुरी होती है। इसलिए जब तालीम अच्छी होगी तो हालात उनका अच्छा होगा, तो आपको हर बेहतरीन जगह पे आपको रखेगा और आपकी खिदमत भी करेगा, वरना आपका क्या खिदमत। तो अगर पढ़ाने के लिए आप ठान चुके हैं, पढ़ाना है, तो उनके लिए आप हद तक गुजर जाए। मैं इसी बात अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।